آج کے اس بیان کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کی 3 چیزوں کو محبت بھرے انداز میں نہیں چھوتے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی محبت کو کمزور کر دیتے ہیں، اپنے رشتے کی مٹھاس کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر ہمارے گھر میں پہلے جیسا سکون کیوں نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات انسان بڑی بڑی غلطیوں سے نہیں ہارتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں سے ہار جاتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس میں صرف چند لمحے لگتے ہیں، وہی عمل بعض گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اور اسی عمل کو چھوڑ دینا بعض رشتوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے شوہر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری بیوی پہلے جیسی محبت نہیں کرتی، پہلے جیسی عزت نہیں دیتی، پہلے جیسی فکر نہیں کرتی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خود کتنی دیر پہلے اپنی بیوی کے دل کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے آج کا بیان آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج میں ایک گہرے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، جسے سن کر بہت سے لوگ اپنی زندگی کی ایسی غلطیوں کو پہچان لیں گے جنہیں وہ آج تک معمولی سمجھتے آئے تھے۔ میرے بھائیوں، انسان ساری زندگی رزق کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دولت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، بڑے بڑے مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھو، گھر اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ محبت اور احساس سے آباد ہوتے ہیں۔ گھر تو صبح سویرے بیوی کی 3 چیزیں چھونے سے، محبت بھرے انداز میں ہاتھ لگانے سے آباد ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آخر عورت کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جنہیں محبت بھرے انداز میں چھونے سے گھر میں برکت آتی ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہے، اور پھر اسی بیوی کی خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ جس گھر میں عورت پریشان رہتی ہو، جس گھر میں عورت کے دل میں شوہر کے لیے محبت نہ ہو، وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے، وہ گھر جلد ویران ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں آپ اپنے گھروں کو تباہی سے بچاؤ، اپنی بیویوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرو، اور آج کا بیان ایک بار غور سے سنو۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ بعض اوقات عورت کو خوش رکھنے کے لیے دولت نہیں بلکہ محبت اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب شخص تھا، اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ غریب شخص خود تو کالے رنگ کا تھا، مگر اس کی بیوی انڈے کی طرح، بلکہ یوں سمجھ لو کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اسی طرح خوبصورت تھی اور پیاری تھی۔ دور دراز سے عورتیں اس کی بیوی کو صرف دیکھنے کے لیے آتی تھیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ فلاں شخص کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، اور جو بھی اس عورت کو دیکھتی وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ بعض عورتیں تو حیران ہو کر کہتی تھیں کہ آخر اتنی خوبصورت عورت ایک غریب آدمی کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ آخر اس غریب آدمی کے پاس ایسا کیا ہے جو بڑے بڑے امیر لوگوں کے پاس نہیں؟ اس خوبصورت عورت کا غریب شوہر جو صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا، پورا دن جنگلوں میں ویرانوں میں محنت مزدوری کرتا، شہر کے بازاروں میں اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے لوگوں سے ذلیل ہوتا، لوگوں کی سخت باتیں برداشت کرتا، شدت کی دھوپ میں محنت مزدوری کرتا، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن میری خوبصورت بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ خوبصورت عورت بھی اس غریب شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ خوبصورت بیوی کا ایک غریب شوہر کے ساتھ رہنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب لوگ دولت کو محبت سے زیادہ اہمیت دیتے ہوں۔ لیکن وہ عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ جو عورت بھی اس کا حال چال پوچھتی تو وہ کہتی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا شوہر غریب ضرور ہے مگر میرے لیے اس کے دل میں محبت بہت ہے، اور دنیا کی ہر دولت اس محبت کے سامنے چھوٹی لگتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس خوبصورت عورت کا شوہر محنت مزدوری کرنے کے بعد شام کو واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے جاتے راستے میں اچانک موسم خراب ہوا اور تیز آندھی اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارد گرد کوئی گھر نہیں تھا جہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتا۔ خیر، یہ شخص آہستہ آہستہ چلتا رہا، لیکن آندھی تیز ہوتی گئی۔ آندھی اتنی تیز ہوئی کہ یہ شخص خود کو قابو نہ کر سکا، اور آندھی کی ہوا نے اسے اڑایا اور کسی اندھے کنویں کے اندر جا گرایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان ایک لمحے میں ایسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ یہ شخص کنویں کے اندر جا گرا۔ یہ کنواں بہت بڑا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا، اور پانی کے اندر سانپ اور بچھو تھے۔ سانپوں اور بچھوؤں کے کاٹنے سے وہ شخص وہیں کا وہیں انتقال کر گیا۔
अब वह खूबसूरत औरत बैठी घर में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि मौसम भी खराब है और मेरा शौहर अभी तक घर नहीं पहुंचा, अल्लाह खैर ही करे। शौहर का इंतजार करते करते 1 हफ्ता गुजर गया, मगर शौहर घर में न आया। अब तो उस औरत को पक्का यकीन हो गया कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर इस दुनिया में होता तो हर हाल में वह बीवी के पास जरूर आता। यह औरत दिन रात रोती रहती, खुद से अकेले में बातें करती रहती, कभी अपने शौहर के कपड़ों को सीने से लगा लेती, कभी उस रास्ते की तरफ देखती जिस रास्ते से उसका शौहर रोज शाम को वापस आया करता था। मेरे भाइयों, जिस औरत के दिल में अपने शौहर के लिए सच्ची मोहब्बत हो, उसके लिए शौहर की जुदाई आग के अंगारों पर चलने से कम नहीं होती। एक दिन दीवार के साथ टेक लगाकर बैठकर यह औरत रो ही रही थी कि रोते रोते वहीं उसको नींद आ गई। नींद के अंदर उसने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर उसे सेम वही मंजर दिखाया गया जो उसके शौहर के साथ गुजरा था कि हवा ने उसे उड़ाया और एक अंधे कुएं के अंदर जा गिराया और अब उसका शौहर उस कुएं के अंदर मरा पड़ा है। ख्वाब इतना वाजह था कि जैसे कोई अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हो। ख्वाब देखने के बाद अचानक उस औरत की आंख खुली और यह जल्दी से उठी और जूता पहने बगैर घर से बाहर निकल गई और उस कुएं की तरफ निकल पड़ी। न उसे धूप की परवाह थी, न रास्ते की, न अपने पांव में लगने वाले कांटों की। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कहीं मेरा ख्वाब सच तो नहीं हो गया। भागते भागते दूर से उसने देखा कि हाजियों का एक काफिला है जो उस कुएं के इर्द गिर्द खड़ा है और कुएं के अंदर से कोई चीज निकाल रहा है। यह मंजर देखते ही उस औरत के पैरों तले जमीन निकल गई, उसकी चीख निकल गई। कहीं यह वाकई ख्वाब सच ना हो, वाकई मेरा शौहर इंतकाल न कर गया हो। औरत दीवानों की तरह दौड़ती हुई कुएं के करीब पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वह बार बार अपने रब से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मेरा ख्वाब झूठा साबित कर दे। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को सलामत रख। ऐ अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी के दिन कम करने हो तो कर दे, मगर मेरे शौहर को मुझसे जुदा न कर। लेकिन मेरे भाइयों, बाज औकात इंसान जिस बात से सबसे ज्यादा डरता है, किस्मत उसे उसी दरवाजे पर ला खड़ा करती है। जैसे ही वह औरत लोगों के हुजूम के करीब पहुंची, उसने देखा कि कुएं से एक लाश निकाली जा रही है और उस लाश के कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके शौहर के कपड़े थे। यह मंजर देखते ही उस औरत की चीख आसमान तक जा पहुंची और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। औरत खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल के साथ कुएं के करीब पहुंची। देखा कि वाकई उसका शौहर था जिसको हाजियों का काफिला मिलकर निकाल रहा था। यह देखकर उस औरत की चीख निकल गई। कहने लगी, मैं तो लावारिस थी, मेरा सिर्फ तू ही वारिस था और तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? मैंने तो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। मैंने तो हर शाम तेरे इंतजार में दरवाजे की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि मेरा शौहर जरूर वापस आएगा, मगर आज मेरा यकीन भी टूट गया और मेरा दिल भी टूट गया। कहते हैं कि वह औरत अपने शौहर के जिस्म से लिपटकर इस कदर रोई कि वहां खड़े लोगों की आंखों से भी आंसू निकल आए। बाज लोग तो यह कहने लगे कि वाकई सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है। इंसान दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, मगर अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। खैर, हाजियों ने उसके शौहर को वहीं पर दफना दिया। उनमें से 3 हाजियों ने फैसला किया कि क्यों न हम अपने सफर के जितने भी अखराजात हैं सब उसी औरत को दे दें, क्योंकि यह औरत अब बेसहारा हो चुकी है। उनमें से एक हाजी बहुत बड़ा अमीर था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, दौलत थी। उसने कहा, यारो, अगर मैं इस औरत से निकाह कर लूं तो यह मेरे लिए इबादत भी होगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और एक औरत को सहारा भी मिल जाएगा। बाकी हाजियों ने कहा, यह तो बहुत आला किस्म की नेकी है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत अता फरमाए और इस औरत के दिल का गम भी कम कर दे। खैर, उस मालदार हाजी ने उस औरत से शादी कर ली और उस औरत को अपने घर लेकर गया, क्योंकि उस मालदार शख्स की पहली एक बीवी थी जो कुछ अरसा पहले फौत हो चुकी थी। मालदार ने खूबसूरत बीवी को अपने खूबसूरत घर के अंदर जाकर बिठाया, उसे हौसला दिया, उसके आंसू पोंछे और कहा कि आज से तुम मेरी हो, मैं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारे बच्चे हों तो वह भी जाकर ले आओ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनको भी मेरे पास ले आओ, मैं उनको भी अपने पास रखूंगा। मेरे भाइयों, बाज औकात अल्लाह ताला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। जिस औरत के पास कल खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज उसके पास रहने के लिए एक खूबसूरत घर था। जिस औरत के पास कल कोई सहारा नहीं था, आज उसे एक ऐसा शख्स मिल गया था जो उसके हर दुख को अपना दुख समझ रहा था। उस खूबसूरत औरत ने कहा,
न तो मेरे माँ बाप हैं और न ही मेरे कोई बच्चे हैं, बस मेरा एक शौहर ही था जो फौत हो गया, मेरा और कोई नहीं है। अब यह औरत उस मालदार हाजी के साथ रहने लगी, उसके साथ जिंदगी का अच्छा सा वक्त गुजारने लगी। मगर 5 साल का अरसा गुजर गया था, उस खूबसूरत औरत के जहन से वह गरीब शौहर नहीं उतर रहा था। मालदार शख्स ने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह उसको पहला वाला शौहर भूल जाए, उसकी मोहब्बत भूल जाए, मगर एक औरत थी जिसके जहन से वह गरीब शख्स की मोहब्बत निकल ही नहीं रही थी। मेरे भाइयों, बाज औकात मोहब्बत दौलत से नहीं जीती जाती, बाज औकात दिल पर वह शख्स राज करता है जिसके पास दौलत कम मगर खुलूस ज्यादा हो। एक दिन मालदार शख्स अपनी बीवी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। बातों बातों में उसने कहा कि तुम हर वक्त परेशान रहती हो, हर वक्त उदास रहती हो, और तुम्हें परेशान देखकर मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। आखिर क्या वजह है? 5 साल का अरसा गुजर गया है, तुम्हारा शौहर फौत हुआ और मैं उस शौहर से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत दे रहा हूँ, उससे बढ़कर तुम्हारी फिक्र करता हूँ, उससे बढ़कर मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी तुम हर वक्त परेशान क्यों रहती हो? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी है तो मुझे बताओ, मैं वह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। उस औरत ने कहा कि हाजी साहब, आप मेरे लिए इज्जत के काबिल हैं, लेकिन सच यह है कि तुम मेरे पहले वाले गरीब शौहर के बराबर कभी नहीं हो सकते। यह सुनते ही हाजी साहब की आंखें खुल गईं। हाजी साहब ने हैरान होकर कहा, वह क्यों? आखिर मैं उसके बराबर क्यों नहीं हो सकता? बीवी ने कहा कि उनकी अदाएं, उनके अंदर जो खूबियां थीं वह आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। हाजी साहब ने कहा कि तुम मुझे बताओ, हो सकता है वह खूबियां मैं अपने अंदर ले आऊं। बीवी ने कहा, मेरा पहला वाला शौहर गरीब जरूर था, मगर वह मुझे मोहब्बत इस कदर देता था कि मेरी नज़र उसकी गुर्बत पर पड़ती ही नहीं थी, मेरी नज़र अपनी ख्वाहिशात पर पड़ती ही नहीं होती थी। मेरा वह गरीब शौहर सुबह सवेरे उठता था, नमाज पढ़ने के बाद मेरे पास आता, मेरे हाथों को पकड़ता, अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़ता और मोहब्बत भरे लहजे में कहता कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ है और मैं हर वक्त दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए खुश रहो। जब वह घर के अंदर दाखिल होता था तो वह मेरी पेशानी पर बोसा दिया करता था। उसका एक बोसा मेरी दिन भर की थकावट को खत्म कर देता था, और जब मैं काम कर कर के थक जाती थी तो वह मेरे दोनों हाथ पकड़ता और दोनों हाथों पर बोसा देकर कहता कि कभी कभार आराम भी कर लिया करो, हर वक्त काम ही करती रहती हो। उसका यह अमल मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं अपनी गुर्बत को भूल जाती थी, शौहर के इस प्यार के अंदर फना हो जाती थी। ऐ हाजी साहब, तुम्हारे अंदर वह कमालात नहीं जो मेरे पहले वाले गरीब शौहर के अंदर थे। मेरे भाइयों, औरत ने बात जारी रखते हुए कहा कि मेरा शौहर मुझे कीमती तोहफे नहीं देता था, लेकिन वह मुझे कीमती महसूस जरूर करवाता था। उसके पास सोने के जेवरात नहीं थे, लेकिन उसके अल्फाज मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती थे। उसके पास बड़े बड़े महलात नहीं थे, लेकिन उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए किसी महल से कम नहीं था। वह जब घर से बाहर जाता था तो मुझे यूं महसूस करवाता था जैसे मैं उसकी दुनिया की सबसे अहम शख्सियत हूँ, और जब घर वापस आता था तो यूं लगता था जैसे मेरे घर में खुशी दाखिल हो गई हो। हाजी साहब, दौलत से घर जरूर चलता है, लेकिन मोहब्बत से दिल चलते हैं, और मेरा दिल आज भी उस शख्स की उन छोटी छोटी मोहब्बतों को याद करता है जो शायद तुम्हारी सारी दौलत भी मुझे नहीं दे सकी। बीवी की बातें सुनकर हाजी साहब दंग रह गया। सोचने लगा कि क्या बीवी इन छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो सकती है? क्या वाकई एक औरत के दिल तक पहुंचने के लिए सोने के जेवरात जरूरी नहीं होते? क्या वाकई एक औरत को सिर्फ दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत भरे अल्फाज, इज्जत भरे अंदाज और एहसास भरे रवैये भी खुश कर सकते हैं? हाजी साहब ने सोच रखा था कि बीवी को खूबसूरत कोठियां खुश रख सकती हैं, खूबसूरत बंगले खुश रख सकते हैं, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत जेवर खुश रख सकते हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह छोटी छोटी चीजें भी औरत को खुश रखने का जरिया बनती हैं। मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात एक मोहब्बत भरा जुमला हजारों रुपए के तोहफे से ज्यादा कीमती साबित होता है। बाज़ औक़ात एक बोसा, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज और एक लम्हे का एहसास व खुशी दे जाता है जो दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें भी नहीं दे सकती। तो मेरे भाइयों, अब यकीनन आपने सुन लिया होगा कि जो लोग सुबह सवेरे उठकर अपने दोनों हाथों से अपनी बीवी के दोनों हाथ पकड़ते हैं, बीवी के हाथों को मोहब्बत से छूते हैं और बीवी के गालों पर हाथ रखकर मोहब्बत भरे अंदाज में छूते हैं और बीवी की पेशानी पर बोसा करते हैं, ये वह लोग होते हैं जिनके घर जन्नत के टुकड़े बने होते हैं, क्योंकि ऐसी बीवी अपने शौहर पर बहुत ज्यादा खुश रहती है।
वह शौहर के लिए दुआएं करती है, शौहर की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझती है, शौहर के दुख को अपना दुख समझती है। और जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए नर्म दिल हो जाए, वहाँ घर का माहौल भी नर्म हो जाता है। और जहाँ रहमत की बारिश उतरे, वहाँ अल्लाह ताला का खास करम होता है, वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, वहाँ एक दूसरे का एहतराम बढ़ता है, वहाँ दिलों के फासले खत्म होते हैं, वहाँ परेशानियाँ भी हल्की महसूस होने लगती हैं। क्योंकि घर का असल सुकून दीवारों, छतों और दौलत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक, मोहब्बत और अच्छे रवैये में होता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरे भाइयों, अगर आप भी आज अपने घर के झगड़े खत्म करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि बीवी की वजह से या शौहर की वजह से कोई भी मसला दरपेश न आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हर वक्त चीख पुकार न हो, तल्ख कलामी न हो, नफरत न हो, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर मोहब्बत, नरमी और एहतराम को जिंदा करो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अल्लाह वाला था, उसके पास एक शख्स रोता हुआ आया और कहने लगा, हजरत, मेरा घर जहन्नुम बन चुका है, न बीवी खुश है, न बच्चे खुश हैं, न मुझे सुकून है। अल्लाह वाले ने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी बीवी का चेहरा मोहब्बत से देखना, उसके हाथ अपने हाथों में लेना और सिर्फ इतना कहना कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम मेरे घर की रौनक हो। वह शख्स हैरान हुआ, कहने लगा, हजरत, क्या इतनी सी बात से घर बदल जाएगा? अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, आग भी चिंगारी से लगती है और मोहब्बत भी एक छोटे से अमल से जिंदा होती है। उस शख्स ने अगली सुबह ऐसा ही किया। बीवी हैरान रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस दिन घर में पहली बार तल्ख कलामी के बजाय खामोश मोहब्बत पैदा हुई। तो मेरे भाइयों, यह हिकायत हमें सबकत देती है कि जो लोग सुबह सवेरे उठकर मोहब्बत भरी नजरों से अपनी बीवी का चेहरा देखते हैं, वह दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वह दिन की शुरुआत लड़ाई से नहीं, मोहब्बत से करते हैं। किसी अल्लाह वाले से पूछा गया, अगर दुनिया में रहकर जन्नत का विजिट करना हो तो कैसे करें? अल्लाह वाले ने कहा, यह तो बिल्कुल आसान है। तुम उस घर में चले जाओ जिस घर के अंदर औरत खुश रहती है, मर्द इज्जत देता है, बच्चे खौफ के बजाय मोहब्बत में पलते हैं। बस यूं समझना कि वह घर जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है, क्योंकि एक औरत की खुशी से घर जन्नत का बाग बनता है और एक मर्द की नरमी से उस बाग की हिफाजत होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी के लिए लिबास बनाया और बीवी को शौहर के लिए लिबास बनाया। लिबास जिस्म को ढांपता है, ऐब छुपाता है, सर्दी गर्मी से बचाता है। इसी तरह मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के ऐब छुपाने हैं, एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे की इज्जत बचानी है। मगर अफसोस, आजकल के मुआशरे में लोग एक दूसरे का लिबास बनने के बजाय एक दूसरे की रुसवाई बन चुके हैं। इसीलिए घरों में सुकून नहीं, दिलों में मोहब्बत नहीं, चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं। शौहर सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, बीवी शिकवे शुरू कर देती है। दोनों में से कोई भी मोहब्बत का पहला कदम नहीं उठाता। फिर कहते हैं, हमारा घर जहन्नुम क्यों बन गया? मेरे भाइयों, घर जहन्नुम खुद नहीं बनता। घर को जहन्नुम हम अपनी जबान से, अपनी जिद से, अपनी बेतवज्जोही से बनाते हैं। और घर जन्नत भी खुद नहीं बनता, उसे मोहब्बत, एहतराम, सब्र, दुआ और छोटे छोटे प्यार भरे आमाल से जन्नत बनाया जाता है।